एक टाइम पे यूपी में एक दिन में 5 से ज़्यादा एनकाउंटर होते थे। बिल्कुल सही है रवि। यूपी हैज़ बिन बैडली अफेक्टेड बाय क्राइम। एनकाउंटर किसका होगा कौन डिसाइड करता है? हम मारने के ख्याल से नहीं जाते हैं। इनकाउंटर्स जो है वो किसी कोल्ड ब्लडेड मर्डर का नाम नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है? हाउ एल्स शुड अ सोसाइटी रिस्पॉन्ड बट टू एलिमिनेट देम? आर कम्युनल राइट्स प्लान्ड? प्री प्लान्ड भी हुए हैं, स्पॉन्टेनियस भी हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको कराई हैं। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। हैव यू एवर हैड समबडी हु इज अ पॉलिटिशियन एंड अ क्रिमिनल? तो उसने कहा कि एसपी साहब अगर आप हमें अरेस्ट करेंगे तो सारे लोगों पे गोलियां चलेंगी। Sir, welcome to the show. थैंक यू। It is an honor because you are a legend, sir. And not only has one not heard of you, you are a rare person amongst police officers also. Because आपका career, sir, बहुत varied रहा है. You have the unique advantage of having governed the trifecta, CISF, NDRF, and a DGP-ship. And a DGP-ship that was marked by a lot of action and a career that has been marked by action. So let me begin with action, sir, with your permission. या प्लीज गो अहेड। Is it true कि एक टाइम पे यूपी में एक दिन में 5 से ज़्यादा एनकाउंटर होते थे? बिल्कुल सही है रवि। यूपी हैज़ बिन बैडली अफेक्टेड बाय क्राइम और इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ यूपी पुलिस यू वुड फाइंड दैट हाई क्राइम रेट, फ्रीक्वेंट कॉम्युनल इंसिडेंट्स, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक क्रिमिनलिटी पुलिस में जो होती है वो भी क्रिमिनलिटी वहाँ रही है। So I have seen UP from a very close quarter. I have been born and brought up there in UP cadre. I belong to UP cadre of 1983 batch, and I have seen it from my initial days. And I have been posted in very many districts. You talk of any district which is communally sensitive, I have been posted there. Either it's Allahabad, which is now called Prayag, or it is Aligarh, Muradabad, Varanasi, Lucknow, Azamgarh. All these places are heavily communally infested districts. And if you talk of the organized crime, there are places like Bulandshahr, Meerut, Ghaziabad, which used to be called Wild West in the mid-90s. And then you have the places in central UP. You have the Tarai areas like Lakhimpur, Pilibhit, Shahjahanpur, Biznor. All these places were highly infested with the Sikh militants in early 90s and late 80s. So UP gives you a mix of everything, and policing in UP becomes very, very complicated and difficult. Imagine a state which has the highest population ratio. I mean, population, you have almost 23, 24 crores of people. You have more than 1,500 police stations. You have 75 districts with 18 ranges. So all these gives you a very complicated and very different picture altogether. It's fifth largest in the whole world. So policing a state like UP becomes a dream come true for any officer and also a very challenging task. And to head a police organization like UP, which I headed just before my retirement, that was something which I feel that can never come again. I mean, that was something very good. And in fact, I was telling you that when I took over as DGP, the scenario in crime management was totally bleak. Sir. You had the Muzaffarnagar riot in 2013. You had cases like Bulandshahr 6 scandal, 6 incident. You had many incidents of organized crime, Mukhtar Ansari, Atiq Ahmad. So many of them were just ruling the roast in various parts of the state. In that scenario, it was a great challenge on the part of the police leadership. And perhaps that was the reason why I was picked up. I was heading the organization in CISF. I was very comfortably ensconced there, doing innovative strategies. And then all of a sudden, in the month of December 2017, I was given the order and I was called back to UP. So I think that was a great charm, that was a great challenge, and that was a great assignment by me, yes. एंड सर, जब आप 2017 में डीजीपी बन के आए, what was the prime objective? Was it crime? And organized crime, was that on the top of your agenda? Because afterward, it seems like you seem to have wiped it out clean.
And of course, I will come to what support you had from the government, what was the role of योगी आदित्यनाथ, what strategies were used, etc. etc. तो सर 2017 में सबसे बड़े अर्जेंट प्रॉब्लम क्या था वहाँ पे, और अब आप आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे देखते हैं उसको, कितना बदल गया है सर यूपी? रवि, आपने सही पूछा। 2017 में जब नई सरकार आई, जी मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने, सर। तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे ही उन्होंने इस इलेक्शन को बहुत हद तक जीता था। और उसके पहले जो सरकार थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। तो नेचुरली गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी थी कि रूल ऑफ लॉ किस प्रकार हम इस्टेब्लिश करें। और उन्होंने जिन व्यक्तियों को चुना, उन व्यक्तियों से भी यही उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम की स्थिति है, जो क्राइम सिचुएशन है, उसको हम किस प्रकार बढ़िया करें, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करें, क्रिमिनल्स को के विरुद्ध कार्रवाई हो, और साथ ही साथ जो माफिया और गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि यूपी जो है वो वाज बैडली अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सर इफ़ आई मे आस्क, जब आप बैडली अफेक्टेड कहते हैं, हाउ कैन वी पेंट अ पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम टू मेक देम फील हाउ सीवियर द सिचुएशन वॉज? आई कैन गिव यू वेरी मेनी एग्जाम्पल्स। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो वहाँ ऐसे गैंग्स थे जो मे नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट और एज प्रोमिनेंट एज मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, बट दे वर ऑल ड्रेडेड क्रिमिनल्स हु आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, सहारनपुर है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है। ये सब ऐसे जगह थे जहाँ पे इन क्रिमिनल्स का अपना बोलबाला था, और वो क्रिमिनल्स ने अपने अपने क्षेत्र में आधिपत्य जमा रखा था। कोई सरिया माफिया है, तो कोई बालू माफिया है, तो कोई बिज़नेस को, मैग्नेट को अफेक्ट कर रहा है। मुझे याद है 1994 में जब महेंद्र फौजी का इनकाउंटर हुआ था, और वो इनकाउंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, बुलंदशहर में, जहाँ मैं एसएसपी था। उस समय भी उसकी तूती बोलती थी। आप समझिए उस समय उसके सर पे 2 लाख रुपए का इनाम था। 1 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था और 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने किया था। 1994 में 2 लाख रुपए सोचा नहीं जा सकता था। बहुत ज़्यादा हम अगर किसी क्रिमिनल के खिलाफ इनाम रखते थे तो 20,000, 15,000, 20,000, 25,000। मुझे याद है कि तराई क्षेत्र में जब हमने फर्स्ट इनकाउंटर किया जिसमें 4 सिख मिलिटेंट्स मारे गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 15,000 रुपये का इनाम दिया 1992 में। तो आप समझ सकते हैं कि 15-20 हज़ार भी एक बहुत बड़ी राशि होती थी। और उस समय महेंद्र फौजी के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम, तो सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और उसकी तूती ऐसी बोलती थी कि चाहे वो सहारनपुर हो, देहरादून हो, बस उसका मेन मकसद यही था कि किस प्रकार हम किडनैपिंग करके रैंसम हम वसूलें। किडनैपिंग फॉर रैंसम, दैट वाज द होल मोटो। एंड फ्रिक्वेंटली ये होता था, रोड होल्डअप्स होते थे, किडनैपिंग्स होते थे, मर्डर्स होते थे, रॉबरीज होते थे, डकैतीज़ होते थे। एक ज़माना था जो बहुत 70s 80s में जब डकैतों का ज़माना था, उसके बाद धीरे धीरे गैंगस्टर्स का ज़माना आया। और आप आज सोच सकते हैं कि आज तो डिजिटल क्रिमिनल्स की बात हम करते हैं, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड की बात करते हैं। तो हर एक फेज़ में उत्तर प्रदेश या फॉर दैट मैटर इंडिया की कोई भी राज्य हो, वो गुजर रही है। और 2017-2018 में अमूमन यही स्थिति थी उत्तर प्रदेश की कि जहाँ क्रिमिनल्स जो हैं वो काफ़ी हावी थे और पुलिस का मनोबल भी बहुत गिरा हुआ था। प्रतापगढ़ का इंसिडेंट था जिसमें हमारे एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी। उसके अलावा भी कई ऐसे जहाँ थे जहाँ पे पुलिस पे प्रहार होता था। कॉमनल इंसिडेंट्स जो हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली होते थे। मुझे याद है 2012-2013 में मैं एडीजी इंटेलिजेंस होता था, इंटेलिजेंस चीफ ऑफ द स्टेट। उस समय बिजनौर में, मुरादाबाद में, रामपुर में, इन सबों में फ्रीक्वेंसी जो कॉमनल इंसिडेंट्स की थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमेशा हुआ करता था। और अल्टीमेटली 2013 में मुजफ्फरनगर रॉयट हुआ, जो कि बहुत ही वन ऑफ द डेडलीस्ट इनकाउंटर रॉयट्स हुए, जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए। इस सिचुएशन में सर 2017 में यू एंटर, बट आप उस टाइम तक यूपी में बहुत टाइम बिता चुके थे, आपका पेरेंट काटर था वो। इनकाउंटर्स पे आते हैं सर, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ज़रिया, एक एक्सट्रीम सा ज़रिया है इनकाउंटर सर क्यों होते हैं? इनकाउंटर्स कैसे प्लान करे जाते हैं? इनकाउंटर किसका होगा, कौन डिसाइड करता है? आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दोज काउंट्स, बट लेट मी फर्स्ट आस्क हाउ मेनी इनकाउंटर्स हैपेंड? माय डेटा इज सेइंग more than 600 criminals were killed.
No, if I remember correctly, it was more than 200. More than 200 and 250. I don't have the exact figure, Sir. but उतने मारे गए हैं. जी सर, एनकाउंटर्स कैसे किए जाते हैं? एनकाउंटर यू आई नो दैट यू यूज अ डिफरेंट टर्म फॉर इट, यू से पुलिस Engagement. एंगेजमेंट, यस एक्चुअली जब मैंने डीजीपी का पदभार संभाला, सर। तो उस समय हम लोगों के पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ड्रेडेड क्रिमिनल्स की चुनौती थी. जी और इनकाउंटर्स हो रहे थे, पुलिस एक्शन में थी और पुलिस का एक अपर हैंड हो गया था, क्योंकि मेन मोटो था कि किस प्रकार हम रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करें. इसीलिए मैंने कहा कि इनकाउंटर्स इज़ अ वेरी, इट्स नॉट अ गुड वर्ड टू यूज़. इनकाउंटर्स की जगह हम पुलिस इंगेजमेंट रखें, क्योंकि इंगेजमेंट जो तभी होता है जब हम क्रिमिनल्स को पकड़ने जाते हैं या क्रिमिनल से जब मेरा सामना होता है, तो हमारी पूरी प्रायोरिटी जो है वो उसको अरेस्ट करने की होती है. हम मारने के ख्याल से नहीं जाते हैं. इनकाउंटर्स जो है वो किसी कोल्ड ब्लडेड मर्डर का नाम नहीं है. इनकाउंटर्स मीन्स यू ट्राई टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिमिनल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन. और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप क्रिमिनल्स का पता करते हैं, उनका चेज़ करते हैं, उनको पीछा करते हैं और बाद में फिर इंगेजमेंट होता है. और उस इंगेजमेंट में अगर गिरफ्तार करने योग्य है, अगर उसने कोई फायरिंग नहीं की हो, एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं होता है, तो वो अरेस्ट होता है. और यदि उसने पुलिस पार्टी पर प्रहार किया, फायर किया, तो नेचुरली सेल्फ डिफेंस में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ती है, जिसमें इनकाउंटर में वो क्रिमिनल हो सकता है मारा जाए. तो इसलिए मैंने कहा कि ये पुलिस इंगेजमेंट है. जी देखिए रवि, एक बात क्लियर है कि इनकाउंटर्स जो हैं वो बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, और ये किसी भी सोसाइटी के कॉन्शियंस को हर्ट करता है. कोई भी पुलिसकर्मी या फॉर दैट मैटर कोई भी स्टेट नहीं चाहता है कि हम इनकाउंटर्स में कोल्ड ब्लडेड मर्डर करें. लेकिन ये भी है कि पुलिस ऑफिसर इज़ फेस्ड विथ अ डिफरेंट सिचुएशन. एक तरफ पब्लिक प्रेशर रहता है कि बहुत से ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जिसमें पब्लिक चाहती है कि बहुत ही इंस्टेंट सज़ा मिले, उसको तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि जुडिशल प्रोसेस हमारा बहुत टार्डी है, बहुत ही स्लगिश है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें. और दूसरा, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं. तो एक पुलिस ऑफिसर के बीच एक द्वंद्व रहता है. ऑन द वन हैंड यू हैव द पब्लिक प्रेशर, ऑन द अदर हैंड यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर. तो नॉर्मली जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में कानून का सहारा ले, संविधान का सहारा ले, और उस सहारा के आधार पर वो आगे बढ़े. सबसे बड़ी चीज़ होती है, दिक्कत तब होती है जब हम इनकाउंटर्स को एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट से चलते हैं. और वो स्क्रिप्ट यही है कि एक ही तरह का परिवेश है, एक ही तरह की सेटिंग है, एक ही तरह का रिजल्ट्स है, एक ही तरह काम करने का तरीका है. वो संभवतः कहीं ना कहीं शक पैदा करता है, और वो उस पर क्वेश्चन मार्क्स लगाता है कि आपने जो है, आपने बुलंदशहर में इनकाउंटर किया हो या मुजफ्फरनगर में किया हो या वाराणसी में किया हो, आपका सेटिंग जो है ऑलमोस्ट एक है. और दैट गिव्स राइज टू लॉट ऑफ सस्पिशन. बट यू हैव लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, ये क्लियर कट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक गाइडलाइंस है कि इनकाउंटर्स होने पे क्या आपको करना है. सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं उस पर. मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन सबों के आधार पर फाइनल रिपोर्ट्स लगाए जाते हैं. बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें फर्जी इनकाउंटर्स हुए हैं पूरे देश में. हम लोगों ने सुना है कि कई लोगों को सज़ा भी हुई है. लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर्स हमारे समय में हुए हैं या उसके बाद भी हुए हैं, हम लोगों ने उसे एक बहुत ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है उसके आधार पे हम लोगों ने काम किया कि हर एक इनकाउंटर में जिसमें अगर क्रिमिनल मारा गया हो तो उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस को देखा जाता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, और सारी चीज़ों को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रखा जाता है. और मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है. मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होती है, तो उसमें ये पता चलता है कि ये केस सही है या गलत है, और उसके आधार पर फिर कोर्ट ऑफ लॉ भी डिसाइड करता है. और कोर्ट ऑफ लॉ के पास बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, और उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है. तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे करें. हम इसीलिए इसको इनकाउंटर्स ना कह के इंगेजमेंट कहते हैं, और हम इसीलिए इसको कहते हैं कि अगर रूल ऑफ लॉ को आपको इस्टेब्लिश करना है तो आपको सही तरीके से ये करना पड़ेगा. पुलिस को कोई पावर नहीं है कि वो कोल्ड ब्लडेड वे में किसी की जान ले. और
कई बार दिक्कतें ऐसी होती हैं और कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि आपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए आपने किया, आपने करप्शन के कारण इनकाउंटर्स किए, आपने ड्रेडेड क्रिमिनल्स को दिन दहाड़े उनको कहीं से पिकअप किया और उसको मार दिया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो इन सब चीज़ों को जुडिशरी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सब देखती है और मैं समझता हूँ कि एक फेयर तरीके से ट्रीटमेंट होता है। और इंसिडेंटली उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स जो हमारे समय में हुए या बाद में हुए, उन सबों में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया कि हम किस प्रकार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और उसकी विवेचना कर सकें। जी सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है? क्योंकि जो इनकाउंटर्स पे नेगेटिविटी आती है, जो एक सवाल उठता है सिविल सोसाइटी से, वो अपनी जगह ठीक है, बट मुझे लगता है वो कुछ हद तक इम्प्रैक्टिकल भी है, बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ थ्रोज द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। अगर ऐसी बात होती तो इनकाउंटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, विच इज़ वाई आई स्टार्टेड विद द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ बैड इट वॉज। एंड इफ इट वॉज दैट बैड, वी वुड नॉट बी सिटिंग हियर लाइक दिस। हम आज यूपी में ही हैं और एक बहुत रिलेटिवली सेफ इन्वायरमेंट में हैं। आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन इज़ टू बी थैंक्ड फॉर इट and it cannot be taken for granted. And if there is somebody going around killing people or kidnapping people or women or children, how else should a society respond but to eliminate them? I would partially agree with you and not 100% I'll agree with you, because जैसा मैंने पहले कहा कि पब्लिक प्रेशर रहता है। Sir. पब्लिक चाहती है कि एक इंस्टेंट जस्टिस हो, पब्लिक चाहती है कि एक इंस्टेंट पनिशमेंट उसको दिया जाए, चाहे वो अरेस्ट हो या इनकाउंटर में मारा जाए, पर्टिकुलरली उन जघन्य अपराधों में जिसने किसी क्रिमिनल ने किसी लड़की का रेप कर दिया हो या किसी का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया हो। इन सब स्थितियों में पब्लिक आउटरेज होता है, ये बात अपनी ओर है। लेकिन पुलिस को भी कोई अधिकार नहीं है कि क्रिमिनल्स को सिटीजन्स की तरह न देखा जाए। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो आवर ओन सिटीजन्स, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे आर क्रिमिनल्स बट दे आर क्रिमिनल्स ऑफ आवर कंट्री। दे हैव टू बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। लेकिन फिर भी प्रश्न ये उठता है कि हमें क्यों इनकाउंटर्स या इंगेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें हमारी जो व्यावसायिक दक्षता है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसीलिए हम इन्वेस्टिगेशंस जब करते हैं तो हम एविडेंस को देखने की कोशिश नहीं करते हैं, हम साइंटिफिक तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज़ की कमी है, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है, हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। इन सब की कमी के कारण उसका प्रभाव जो है प्रोफेशनलिज्म पे पड़ता है। और एक पुलिस ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने न केवल कानून को जाने बल्कि कानून का पालन कैसे करे। बहुत सी चीज़ों में हम देखते हैं कि हम बहुत सी चीज़ें जानते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो उसको नहीं सिखाते हैं। सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में इस बात को बताया जाता है कि फेक इनकाउंटर्स या कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कहता है कि नो यू कैन गो फॉर इनकाउंटर्स। लेकिन परिस्थितियों में, और आपको ये भी देखना होगा कि किस प्रकार का डिसीजन होता है। एक लीडर जब इनकाउंटर स्थल पे होता है, व्हेन ही इज फेस्ड विद अ प्रॉब्लम वेयर द बुलेट्स आर कमिंग, बुलेट्स आर हिटिंग द बॉडीज, उस स्प्लिट सेकंड में उसका डिसीजन क्या होता है वो हम ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं डिस्कस कर सकते। उसको लगता है कि नहीं, उसके पास भी एक लाइफ और डेथ का डेंजर हो रहा है और उस डेंजर में वॉट एवर ही डज इट विथ ऑल रिसोर्सेज एट हिज कमांड। तो इन सब चीज़ों की बारीकियां जो हैं, जैसे आपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा, क्या ऐसी परिस्थिति थी जिसमें सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ गई? क्या सेल्फ डिफेंस के समय में आपका यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है या कम है? इन सब चीज़ों को इनकाउंटर के बाद मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में देखा जाता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में देखा जाता है और अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ उसको डिसाइड करती है। तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ने किसी इनकाउंटर को सही ठहराया है और सभी बारीकी पहलुओं को देखा है, तो हम और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं, वी हैव टू अगेन रेज द क्वेश्चंस। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ
कानून का राज बहुत ही अच्छा है, सर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं, हमारे लीगल प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं, और उन लीगल प्रोविजंस को अगर हम बढ़िया से देखें और प्रोफेशनल तरीके से हम उस पर काम करें तो हमें इनकाउंटर्स जो है वो फर्जी किए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. इनफैक्ट वी हैव टू टेल द मासेस दैट दिस इज़ व्हाट वी इंटेंड टू डू इट. हम किसी भी आदमी को मारने का अधिकार तब तक नहीं रखते जब तक कि हम रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करके रखें. जी सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ, एनकाउंटर तक बात पहुँचती कब है? व्हाट इज़ द लैडर ऑफ एस्केलेशन? एक नॉर्मल क्रिमिनल मान लीजिए आता है कुछ पुलिस के जानकारी में, क्या क्या होना होता है कि वो उस लिस्ट पे पहुंच जाता है जिस लिस्ट में हमको लगता है कि इसको एंगेज करके या तो गिरफ्तार करो, और अगर ये वापस फायर बैक करता है तो ही कैन बी शॉट डाउन एंड किल्ड. ये बात सही है कि बहुत बार चांस इनकाउंटर्स होते हैं. चांस इनकाउंटर्स होते हैं, जैसे महेंद्र फौजी का इनकाउंटर हुआ बुलंदशहर में 1994 में. दैट वाज प्योरली अ चांस इनकाउंटर. वी वेर सर्चिंग, वी वर जस्ट जिसको कहा जाता है कि हम लोग पिकेट्स पे जो है चेकिंग कर रहे थे, और उस पिकेट्स की चेकिंग पे अचानक हम लोगों ने देखा कि एक कार आई और उस पर 2-3 आदमी थे जिनके पास वेपन्स था. उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया. बाद में पता चला कि ये महेंद्र फौजी था. तो कई बार चांस इनकाउंटर्स होते हैं जिसमें दोनों हो सकता है, या तो पुलिस वाले मारे जा सकते हैं या क्रिमिनल मारा जा सकता है. बट कई बार ऐसे होते हैं कि हम उनकी गंभीरता को देखते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कई बार टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची बनाई, हमने गैंगस्टर्स की सूची बनाई, हमने माफियाओं की सूची बनाई, और उनको मारने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनके इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए. आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उनके द्वारा जो अवैध संपत्तियां रखी गई थी उन सबों को हमने वो किया, उनको अर्जित किया, उनको सीज़ किया, और सीज़ करके फिर उसको गवर्नमेंट को दिया. तो बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं उनके द्वारा जो हम लोग उनके पीछे पड़ते हैं, और उनके पीछे इसलिए पड़ते हैं कि उन्हें हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है, उन्हें हम गिरफ़्तार करना चाहते हैं, उन्हें जेल के सीखों में भेजना चाहते हैं, उन्हें कन्विक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन इन लोगों का हुआ ही नहीं था, चाहे वो अतीक अहमद हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, इन 2 बड़े गैंगस्टर्स का. और बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं, ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे या कई जगहों के थे. उनका कन्विक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि विटनेसेस जो हैं उनके विरुद्ध गवाही नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि उनका माहौल ऐसा था, उत्तर प्रदेश में कानून का माहौल ऐसा ख़राब था कि किसी को विश्वास ही नहीं था पुलिस के ऊपर. उनको ज़्यादा विश्वास था क्रिमिनल्स की पॉलिसी पे, उनको ज़्यादा विश्वास था क्रिमिनल्स की कैपेबिलिटी पे, कि हमें अंत में अगर उनके खिलाफ गवाही देंगे तो हम मारे जाएंगे. तो यही कारण था कि डेट पे डेट पड़ते थे, महीनों तक, सालों तक जुडिशल प्रोसेस चलता रहता था और कभी कन्विक्शन नहीं होता था. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनलिटी थ्राइव कर रहा है. हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा. हम लोगों ने न केवल उनको गिरफ्तार करके अकाउंट फॉर किया, न केवल उनकी अवैध संपत्तियों को सीज़ किया, बल्कि गवाहों को भी हमने एक प्रोत्साहित किया, उनको एक कॉन्फिडेंस दिया. और यही कारण है कि जब MP MLA कोर्ट जब बना और उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगी तो गवाह जो हैं वो आने लगे, और जब गवाही दिए जाने लगी तो कन्विक्शन रेट भी बढ़ने लगा और कन्विक्शन भी होने लगा. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक हम होलिस्टिक वे में देखें, और उस होलिस्टिक वे में देखने के लिए पुलिस जो है एक वन ऑफ द मीन्स टू डू इट. You have the prosecution, you have the judiciary, you have the prison reforms, there are so many ways to look at it. तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन सब चीज़ों को बहुत ही होलिस्टिक वे में देखना शुरू किया. इंटरऑपरेबिलिटी किया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को. फॉर एग्जांपल, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ई प्रोसिक्यूशन हम लोगों ने शुरू किया. मुझे याद है 2019 में मुरादाबाद और लखनऊ में ई प्रोसिक्यूशन के पोर्टल्स खोले गए, और सिविल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने केस डायरी जो है वो डिजिटली अपलोड करना शुरू किया, जिससे कि हैसन हुआ, कन्विक्शंस हुआ. पॉक्सो के केसेस में औरैया में सिर्फ 9 दिनों में सज़ा दी गई. दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस पैरवी बाय द पुलिस डिपार्टमेंट कि हम किस प्रकार गवाहों को लाएं और हम इसको वो करें. मुझे याद है एज DGP मैंने
अपने चेम्बर में पॉक्सो के केसेस को खुद देखता था, मॉनिटर करता था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू फिजिकल दिस थिंग। और जितने भी हमारे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज थे, डीजीसीज थे, उन सबों को ब्रीफ किया जाता था कि कैसे हम इसको जल्दीबाजी करें ताकि कन्विक्शन हो सके। तो मैं समझता हूँ कि इनकाउंटर इज़ जस्ट वन स्टेप। इनकाउंटर लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा ग्लैमरस लगता है, बट बिहाइंड एनी इनकाउंटर you have the purpose of convicting those people, purpose of convicting those criminals, either through good process of law, through good prosecution, and ultimately through good trial. थ्रू ट्रायल। तो क्या पुलिस के पास बिहाइंड द सीन्स कुछ कैटेगराइजेशंस होती हैं, कुछ टैक्सोनॉमीज होती हैं जिसके अंदर वो क्रिमिनल्स को रेट करते हैं, लोअर क्रिमिनल, हायर क्रिमिनल, ABCD 1 2 3, आर देयर, इज देयर एनी सच? Absolutely, you have top 10 criminals की मैंने बात की। हम लोगों ने कई वर्षों से, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 क्रिमिनल्स कौन हैं उसकी लिस्ट हम लोगों ने बनाया। और टॉप 10 क्रिमिनल्स जो हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही जघन्य अपराधी हों। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिमिनल्स, फॉर एग्जांपल, आप लड़कियों की छेड़खानी हो रही है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के पास, अगर कोई क्रिमिनल जो है वो मॉलेस्टेशन करता है या ईव टीजिंग करता है, विच अल्टीमेटली कैन टेक टू केसेस ऑफ रेप, वो भी हमारे लिए टॉप 10 क्रिमिनल के श्रेणी में आता है। हो सकता है कि जो टॉप 10 क्रिमिनल मेरठ का हो, गाजियाबाद का हो, वो टॉप 10 क्रिमिनल की श्रेणी में बस्ती और गोंडा का क्रिमिनल नहीं आता हो। तो ये तो डिपेंड करता है उस जनपद के भौगोलिक स्थिति और उसके क्रिमिनल स्टेट ऑफ अफेयर्स पे। तो टॉप 10 हमारे यहाँ हमेशा बनता है, जिसमें हम उसको चाहते हैं कि हम उन टॉप 10 क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई करें, और वो बहुत ज़रूरी है ताकि उससे हम एक मॉनिटर कर सकें और एक अकाउंट फॉर कर सकें, और साथ ही साथ हम स्टॉक टेकिंग भी कर सकें। तो ये बात सही है कि कैटेगराइजेशंस होता है। और उसके अलावा हिस्ट्री शीटर्स हमारे यहाँ होते हैं, हिस्ट्री शीट का भी एक कैटेगराइजेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पुलिस प्रोसीजर्स में हैं, जिसके आधार पे हम क्रिमिनल्स का वर्गीकरण करते हैं। और जब हम क्रिमिनल्स का वर्गीकरण करते हैं तो हमारी टीम्स बनती है, मेटिकुलस प्लानिंग होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशंस की तलाश की जाती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है, इन्फॉर्मेंट्स को बनाया जाता है, उसके विरुद्ध पूरी तैयारी की जाती है, और तब कहीं जाकर उनके विरुद्ध सूचनाएं ली जाती हैं। इसी प्रकार अगर टेररिस्ट की कोई बात होती है तो टेररिस्ट में भी इसी प्रकार का होता है। आई कैन टॉक अबाउट लखीमपुर खीरी, कि लखीमपुर खीरी जो तराई का एक बहुत ही इन्फेस्टेड एरिया था, जहाँ पे सिख मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द लेट 80s एंड अर्ली 90s। जी सर, आपने मुझे बताया, और इनफैक्ट मैं देख रहा था कि इस बुक में थ्रू माई आईज देयर इज अ लॉट ऑफ मेंशन of that area. Yes. Because it seems to have happened during the earlier times of your career. Yes. Please sir. तो ये, और इसमें फिर दूसरी किताब में भी जो हमने लिखा है, क्राइम ग्राइम एंड गम्पशन, उसमें भी हमने लखीमपुर खीरी और यूपी की तराई के बारे में पूरा जिक्र किया है। इनफैक्ट वन होल चैप्टर इज डिवोटेड टू दैट। और हमने यूपी कॉलिंग नहीं, सीज ऑफ खीरी, द सीज ऑफ खीरी। ओके। उस समय ये 92-93 की बात है, जब मैं वहाँ एसपी था। और उस समय 91 में आपको याद होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ पंजाब में, 84 में मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ, और उसके बाद बहुत ही तेज़ी से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी। खालिस्तान मूवमेंट बढ़ा पंजाब में, हरियाणा में भी कुछ हद तक हुआ, और उसका स्पिल ओवर जो है वो पंजाब का स्पिल ओवर जो है वो यूपी के तराई एरिया में हुआ। तराई में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी हों, सीतापुर हों, बहराइच हों, पीलीभीत हों, बिजनौर हो, नैनीताल हो, तो इन सब जगहों पर पंजाब से आए हुए 40s एंड 50s में जो पंजाब से जो आए थे लोग, वो उन लोगों ने बड़े बड़े झाले बना लिए, बड़े बड़े ज़मीन उनके रहे काफ़ी संख्या में, और वहाँ पे नॉट नेसेसरली कि उनके कंसेंट से, लेकिन उनके जितने भी रिश्तेदार जो पंजाब में थे और उनके द्वारा जो टेररिस्ट वहाँ के थे, उनको एक बहुत ही शरण स्थली बन गया था वहाँ पे। पंजाब से जब प्रेशर होता था पंजाब पुलिस का, तो वो आते थे यहाँ पे और उसके बाद वहाँ से सीधे चले जाते थे। तो वहाँ पे जाकर वो छिपते थे,
और 1990 में और 1991 में तो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ हुए, टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए। मुझे याद है शायद 28 या 29 टेररिस्ट अटैक्स हुए वहाँ पे, और बैंक रॉबरी हुआ, लोगों को मारा गया, वेपन्स छीने गए, इस तरह की घटनाएं हुई। 92 में जब मैंने एज एसपी वहाँ चार्ज लिया तो उस समय भी स्थिति बहुत हुई थी। पहली बार हमने 1 महीने के भीतर हमने 4 ऐसे टेररिस्ट को मारा जो जिनका मकसद ही था कि वो एक पर्टिकुलर परिवार में वो सेक्सुअल असॉल्ट करते थे और उसको सताते थे, और उस व्यक्ति ने हमें वो इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद हम लोग उसके पीछे पड़े और अंत में उसको फिर हम लोगों ने दुधवा नेशनल पार्क जो जंगल है वहाँ पे, उस जंगल में हम लोगों ने पुलिस पूरी पार्टी ने उसको घेरा और फिर इनकाउंटर हुआ और उसमें 4 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक टेररिस्ट के ऊपर 40,000 रुपये का पंजाब पुलिस ने और पंजाब गवर्नमेंट ने इनाम घोषित किया था। तो उसी में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमें, हमारी टीम को 15,000 रुपये दिए और उसके बाद सिलसिला आगे रहा और करीब 12 या 13 ऐसे इनकाउंटर्स हुए जिसमें टेररिस्ट मारे गए। बहुत सारे वेपन्स, जीपीएमजी जनरल पर्पस मशीन गन पहली बार वहाँ सीज़ हुआ, 2 बार हम लोगों ने सीज़ किया। AK-47s की पूरा जखीरा उसका बरामद हुआ। तो इस प्रकार जो है लखीमपुर खीरी और फॉर दैट मैटर पूरा तराई क्षेत्र जो है वो 1993 के अंत में ऑलमोस्ट फ्री हो गया टेररिस्ट एक्टिविटीज से। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द मेटिकुलस प्लानिंग, combing operations, credible informations, winning the heart and minds of the people, instilling confidence. हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को टाड़ा में बंद नहीं किया। उनको कैसे हम विश्वास उनके प्रति जगाएं, इस बात का हमने इस बात की कोशिश की। मुझे याद है एक ऐसे इंसिडेंट में जब पंजाब पुलिस एक हमारे यहाँ एक सिख परिवार के एक पंजाबी एक सरदार को ले गई उठाकर और उसको हमने किस प्रकार वहाँ से छुड़वाया। So that was, that was one of the steps to gain confidence of the people. There the people thought कि ये young SP है जिसने हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए इतना किया। तो हमने ये कहा कि हमें इमीडिएट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट आई वांट कि जब भी कोई टेररिस्ट की घटना होती है या टेररिस्ट का कोई आगमन तुम्हारे यहाँ होता है, यू गिव मी इन्फॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी जान इसके कारण जाए, बिकॉज यू आर स्केयर्ड ऑफ द टेररिस्ट, इवन आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू इमीडिएटली, but give me information after 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, so that I can track their movements, I can map their movements, and ultimately हम लोगों ने, उस समय कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो था नहीं, उस समय GPS का कुछ नहीं था। हम लोग ह्यूमनली पॉसिबल जितना भी हो पाता था उसको ट्रैक करते थे। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत तो हमारे पास इक्विपमेंट आए थे, जैसे नाइट विजन डिवाइसेस थे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी जो हम लोगों ने पंजाब का कॉपी किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में मैनुअल हम लोग किया करते थे थ्रू इन्फॉर्मेशंस, और इन्फॉर्मेशंस का एकमात्र ज़रिया यही था कि किस प्रकार आप कॉन्फिडेंस गेन करें लोकल पॉपुलेस का, वहाँ की आबादी को हम किस प्रकार अपने कॉन्फिडेंस में लें, ये आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। और लखीमपुर खीरी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, एरिया वाइज, भले आबादी के रूप में नहीं हो, लेकिन एरिया उसका काफ़ी बड़ा था और उसमें जंगल, दुधवा नेशनल पार्क था, बहुत सारे झाले थे। तो वहाँ पे पुलिसिंग करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस प्रकार हम लोगों ने टेररिस्ट पे काफ़ी प्रहार किया। मुझे याद है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में हम 17 दिन जो हैं वो बाहर रहते थे, जंगलों में बिताते थे। एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें हमने एक टेररिस्ट को मारा था जो लखनऊ जेल से भाग गया था। 1992 में वो लखनऊ जेल से फ़रार हो गया और छिपते छिपाते उसको फिर हम लोगों ने एक इनकाउंटर में मारा। और तो वहाँ का टेरेन ऐसा था, नदियाँ थी, शारदा नदी या जंगल थे, उस टेरेन में पेट्रोलिंग करना, कॉम्बिंग ऑपरेशन करना, प्लान करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये चुनौती को जब तक आप हेड ऑन नहीं लेंगे तब तक मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने नेतृत्व की क्षमता को भी दिखाएं, तभी आप एक बहुत ही सफल पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, जो इनकाउंटर्स में भी आप सफल हो सकते हैं, इंगेजमेंट में भी सफल हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशन में भी सफल हो सकते हैं और कन्विक्शन को भी एक राह दिखा सकते हैं। सर, आपने कहा कि आप ADG इंटेलिजेंस भी थे जी, और जाहिर सी बात है कि ADG इंटेलिजेंस बनने से पहले आपने ग्राउंड वर्क किया होगा, इन्फॉर्मेंट्स कल्टीवेट किए होंगे, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स होंगे।
ऐसे कौन से इंटेलिजेंस गैदरिंग के तरीके हैं जो हमको नहीं पता? हमको पता है कि हमारे पास और पुलिस के पास एक स्पेशल फंड होता है, और स्पेशल फंड दे के वी कैन रिवॉर्ड इन्फॉर्मेंट्स, दैट इज़ बेसिक इंसेंटिवाइजेशन. क्या कुछ और तरीके हैं? आर देयर अदर थिंग्स दैट आर इंटरेस्टिंग टू नो, दैट inspire some curiosity, which help? Are there innovative ways of extracting intelligence? देखिए, इंटेलिजेंस बहुत ही एक विचित्र तरह की कला है. सभी आदमी एक गुड इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं हो सकते हैं. वी हैव अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल, एंड वी हैव इन द स्टेट्स वी हैव स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरोज. इनफैक्ट मैं स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का ही मुखिया था 2012 में. और उसके कई तरह के हैं. इसमें ओपनली तो कहना बड़ा मुश्किल है, और हम कहना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि उसके तरीके क्या हैं. लेकिन ये ज़रूर है कि सीक्रेट फंड्स जो होते हैं, वो सीक्रेट फंड्स जो हैं उनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशंस लेते हैं. और केवल फंड्स ही नहीं, बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेंट्स हैं जो पैसे के कारण नहीं लालच दे लेते हैं. वो बहुत सारे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और उन वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो इन्फॉर्मेशंस देते हैं. और वो देखते हैं कि आप कितने काबिल हैं, आप किस प्रकार हमारे इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. वो भी आपको टेस्ट करते हैं. बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेंट्स हैं जो आपको भी टेस्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स जो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान नहीं, महत्व नहीं देते हैं. और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो अनअटेंडेड रह जाते हैं. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑपरेशनल इंटेलिजेंस होते हैं, जो उस पर एक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. बहुत से ऐसे हैं जिनको फ़िल्टर आउट किया जाता है. इन्फॉर्मेशंस तो बहुत मिलते हैं. पूरे दिन भर में आपसे हज़ारों लोग मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके सोर्सेज आपको बताते हैं, आपका खुद का नेटवर्क ऐसा होता है, उस नेटवर्क के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिलती हैं. लेकिन हर एक इंफॉर्मेशंस जो है वो इंटेलिजेंस बन जाए, ये नामुमकिन है. When information becomes an intelligence, you'll have to judge it, and there are ways to do that. तो मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो बहुत बड़ी कला है, और वो पुलिस के अधिकारियों में होना बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मली नहीं होता है unless you have worked in that. I have worked in intelligence department as DIG intelligence also, and then subsequently I became chief of intelligence. तो मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे ऑपरेशंस के लिए बहुत ही कारगर रहा. उसके बाद ही मैं CISF का DG बना, NDRF का DG बना, और बाद में UP पुलिस का DG बना. और वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्व की रहीं और बहुत ही फ़ायदेमंद की रहीं. सर, कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या कि आप किसी इन्फॉर्मेंट के पास, यू हैव लॉस्ट एन इन्फॉर्मेंट एंड द इन्फॉर्मेंट वाज किल्ड, और बिकॉज ही वाज इन प्रॉक्सिमिटी विद यू दे वर पनिश्ड? ऐसे कुछ केसेस हुए थे जिसमें कि इन्फॉर्मेंट्स को कुछ हानि हुई, लेकिन फिर उसको हमने कंपनसेट किया. तो बहुत सारे ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं. मुरादाबाद में ऐसे केसेस हुए जिसमें कॉम्युनल राइट्स को हमने रोकने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश की, कुछ में किडनैपिंग रोकने की कोशिश की. तो इन सब चीज़ों में हमने देखा कि इन्फॉर्मेशंस जो हैं, और आपके भी इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है, आप कितना अपनी इंटीग्रिटी को बर्दाश्त किए रहते हैं. आप इसको बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको बताते नहीं हैं. सर, आई एम क्यूरियस अबाउट समथिंग. आपने कहा कि इंटेलिजेंस यूज़ होती है कम्युनल राइट्स को भी कंट्रोल करने में, विच साउंड्स टू मी, आर दीज कम्युनल राइट्स एक्चुअली स्पॉन्टेनियस, और आर दे प्लान्ड, आर दे इंस्टिगेटेड? अगर वो प्लान्ड हैं और इंस्टिगेटेड हैं, तो कोई सोच समझ के तरीके से कर रहा है, तो फिर इंटेलिजेंस समझ में भी आती है कि इसको रोका जा सकता है. क्या ये प्लान्ड होते हैं सर? आर कम्युनल राइट्स प्लान्ड? देखिए, इनमें मिक्स है. कॉम्युनल राइट्स प्लान्ड भी होते हैं, और कभी कभी कॉम्युनल राइट्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियस भी होते हैं. एंड कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अलीगढ़ में देखा है, व्हेन आई वाज SPCT अलीगढ़. वहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, and I was watching. At that time only TV was the source, and I was watching India-Pakistan match, and suddenly I thought towards the end of the game कि पाकिस्तान जो है वो हावी हो रहा है. Okay. और मुझे पता नहीं, गट फीलिंग एक आई कि I must start patrolling the whole area because it may spark off. Okay.
और उसी समय मैंने वायरलेस से सभी अपने एसएचओज को कहा कि जितने भी सेंसिटिव और कम्युनली चार्ज्ड प्लेसेस हैं उन सबों में पेट्रोलिंग शुरू कीजिए। अभी 3-4-5 ओवर्स बचे हुए थे, 6-7 ओवर्स बचे हुए थे। इट वाज T20 और इट वाज लिमिटेड ओवर्स गेम। और कैन यू बिलीव दैट इट हैपेंड, सम स्पार्क वाज देयर, और जो ऊपर कोट का मोहल्ला है उसमें टेंशन होने लगा। और जैसे ही गेम ख़त्म होने की स्थिति आई, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो हैं वो आमने सामने आ गए। तो इस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि स्पॉन्टेनियस भी होता है, बिकॉज इट वॉज नॉट प्लान, इट वॉज नॉट प्री प्लान, बट दिस वॉज समथिंग विच फ्लेयर्ड अप बिकॉज ऑफ द रेलिवेंट सिचुएशन, बिकॉज द सिचुएशन। बट आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अलीगढ़ इन मुहर्रम में, कि जिसमें एक पर्टिकुलर इलाके में वहाँ पे ताजिया को निकालने के लिए उसके 1 साल पहले बवाल हुआ था, टेंशन हुआ था, और उसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। उस समय मैं पोस्टेड नहीं था। मुहर्रम के कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे एसपी बना, और मेरी आदत थी कि जब कॉम्युनल फेस्टिवल्स इस तरह के होते हैं या इस तरह के रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, तो मैं बहुत ही बारीकी से वहाँ के फेस्टिवल रजिस्टर्स को देखता हूँ। तो आई हैपन टू विज़िट कोतवाली देयर एंड आई सॉ द फेस्टिवल रजिस्टर। हर एक थाने में त्यौहार रजिस्टर होता है, और उस त्यौहार रजिस्टर में पर्टिकुलर त्यौहार के बारे में विस्तृत रूप से लिखा रहता है। उसमें ये भी लिखा रहता है कि त्यौहार कैसे बीता। त्यौहार ख़त्म होने के बाद एसएचओ उस पर एंट्री करता है। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि हमें कहाँ कहाँ चैलेंजेस हुए, किस प्रकार का डिप्लॉयमेंट रहा, क्या परेशानियाँ रहीं, कैसे हमने किन किन लोगों की मदद की। इन सब चीज़ों का एक बहुत ही विस्तृत रूप से उसका अध्ययन होकर उसको लिखा जाता है। तो मैं मुहर्रम के ठीक पहले कोतवाली थाने में बैठकर मैं उसको रिलीजियस फेस्टिवल एज ए मैटर ऑफ रूटीन मैं जस्ट फ्लिप थ्रू कर रहा था। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी एक 13 नंबर के, उस पे 1 2 3 4 करके बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो 13वें नंबर पॉइंट पे मुहर्रम के ऊपर, पिछले साल के मुहर्रम के ऊपर एक पर्टिकुलर मोहल्ले में ये लिखा गया कि उस मोहल्ले के बाईं ओर मुस्लिम इलाका है और दाहिनी ओर हिंदू इलाका है, और ताजिया को निकलने में वहाँ पे परेशानी हुई। वहाँ पे दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और बड़ी मशक्क़त के बाद फिर ताजिया को निकाला जा सका। तो मैंने अपने एसएचओ को कहा, और ये मुहर्रम शुरू होने की मुश्किल से 1-2-3 दिन पहले की बात है, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ये पॉइंट पढ़ा है? तो संभवतः उसकी नज़र से नहीं आया था। तो उसने कहा कि सर मैं देखता हूँ। उसने देखा। मैंने कहा कि इस पे आप विशेष ध्यान देंगे और इसको देखेंगे कि इसमें कोई इस बार नहीं कोई दिक्कत हो, बिकॉज इट वाज रिकॉर्डेड फॉर लास्ट ईयर्स फेस्टिवल। एंड कैन यू बिलीव दैट कि द सेम थिंग हैपेंड डिस्पाइट माई इंस्ट्रक्शंस टू द SHO। ही डिड नॉट टेक माई एडवाइस वेरी सीरियसली। इवन आई वॉज वेरी न्यू टू द प्लेस, तो हम भी उतना नहीं जान पाए थे कि क्या बैकग्राउंड होगा। लेकिन उस दिन मुहर्रम के दिन ताजिया निकलने पे दोनों समुदायों के बीच फिर वहाँ पे आमना सामना हुआ, और बहुत ही मैसिव लॉ एंड ऑर्डर हमें देखना पड़ा। तो कभी कभी हम अपनी लेजीनेस के कारण, अपने अकर्मण्यता के कारण, अपने टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड के कारण जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स को उतना बढ़िया नहीं देख पाते हैं। हम उनके डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश काल में डॉक्यूमेंट्स ये जो बनाए जाते थे, वो उनका एक अपना महत्व था। एक तो बहुत बड़ा महत्व इसलिए भी था कि उस समय कोई डिजिटल एज नहीं था, कोई हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास कोई वाईफाई नहीं था, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस वाज टोटली मैनुअल। और ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही हम सारी चीज़ों का आकलन करते थे। वो सिस्टम को हमने अब धीरे धीरे डिसयूज़ में लाना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को ठीक से लिखते नहीं हैं, और लिखते भी हैं तो उसको पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये एक ज्वलंत उदाहरण है। 1987 में, 88 में ये बात हुई, और इस प्रकार मुहर्रम में हमें, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया, और SHO had to cut a very sorry figure for that. I said कि I warned you for that. So this is how the policing is done. पुलिस जो है, पुलिस के चैलेंजेस जो हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का नॉलेज, एक डिफरेंट तरीके का एंटिसिपेशन, एक डिफरेंट तरीके की सोच चाहता है, जहाँ पे आपको अलर्टनेस भी चाहिए, स्मार्टनेस भी चाहिए, एफिशिएंट प्रैक्टिसेस भी चाहिए, ताकि आप एक स्मार्ट रिस्पांस दे सकें। अब जैसे कभी हम अगर बात करते हैं कॉम्युनल सिचुएशंस की, तो कॉम्युनल सिचुएशंस केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। आप एज ए पुलिस ऑफिसर यू नेविगेट हेट,
घृणा क्या है, फियर क्या है। तो इन सब चीज़ों को आप नेविगेट करते हैं। अगर आप उसको एक होलिस्टिक वे में लें कि हमारी कम्युनिटीज़ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घृणा पैदा कर रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फियर पैदा कर रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो विश्वास की कमी ला रहा है। तो कॉमनल सिचुएशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केवल नहीं रहती है, वो इन सब चीज़ों का एक मिश्रण रहता है। और एक पुलिस ऑफिसर जो है वो केवल फायर फाइटिंग नहीं करता है, बल्कि वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कि किस प्रकार हम कम्युनिटी पुलिसिंग के आधार पर उन सबको करें। मुझे इस बात का बहुत फ़क्र है कि जहाँ जहाँ मैं पोस्टेड रहा एज एसपी और एज डिफरेंट डीआईजी और आईजी, जो कि बहुत ही सेंसिटिव कम्युनली सर्च आज, जैसे मेरठ हुआ, बुलंदशहर हुआ, लखनऊ हुआ, मुरादाबाद हुआ, अलीगढ़ हुआ, आज़मगढ़ हुआ, ये सारे कम्युनली, वाराणसी हुआ। कैन यू बिलीव दैट आई नेवर फेस्ड एनी कम्युनल राइट और आई नेवर क्लैम्प्ड एनी कर्फ्यू। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कर्फ्यू नहीं लगाया। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप किस प्रकार हार्ट्स एंड माइंड्स को विन करें अपनी कम्युनिटी को। उसके लिए परिश्रम करने की ज़रूरत है, उसके लिए व्यावसायिक दक्षता पैदा करने की ज़रूरत है। सर, मैं जानना चाहता था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, ऑफ कोर्स आप उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं और आपका एक्सपीरियंस है तो वो निकलता ही है, बट उस नज़रिए से जो आपने अभी कहा, आप सोसाइटी को भी एनालाइज करते हैं। And in fact, that is one of the main things. You are a psychologist, so to speak, but for the minds of a society and where aggression and violence can erupt. आपने सोसाइटी के अंडरबेली को देखा है, आपने उसकी अगलीनेस को भी देखा है, आपने साइकोपैथी देखी होगी, आपने मर्डर, रेज, क्राइम के पीछे के जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको देखा है। तो मैं वो समझना चाहता हूँ सर थोड़ा सा। कम्युनल राइट्स हो गए फॉर इंस्टेंस, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, इनके पीछे के ड्राइवर्स क्या हैं, व्हाट मेक्स देम सो इफेक्टिव, एंड व्हाट हैव यू सीन अबाउट द पीपल इन यूपी, अबाउट certain sections of people that you think makes them prone to crime? Is there such a thing as some communities being much more prone to crime than others because of some factors? ये पहले के ज़माने में ब्रिटिश काल में बहुत सारे क्रिमिनल ट्राइब्स होते थे। अब तो उनका हम वर्गीकरण इस प्रकार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एक कास्ट जो है वो प्रोन है क्राइम के प्रति और दूसरा कास्ट नहीं है। इनफैक्ट क्राइम इज़ यूनिवर्सल फिनोमेना, एंड क्राइम्स जो है वो आजकल न्यूज़ जनरेशन क्राइम्स जितने भी हैं वो कई कारणों से हो रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, डिजिटल क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं। अब तो क्राइम्स बहुत ही फास्ट होने लगा है। पहले के ज़माने में रॉबरीज, डोकैटीज़ हुआ करते थे, अब तो क्रिमिनल साइबर फ्रॉड से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्राइम एक पर्टिकुलर वर्क का डोमेन है। इनफैक्ट अब तो एडल्ट्स क्राइम की जगह जगह चाइल्ड्स क्राइम भी होने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडोलसेंस के 18 के पहले हैं और वो क्राइम बहुत ही खुले तरीके से कर रहे हैं। तो क्राइम के मैनिफेस्टेशंस और डायमेंशंस बहुत इधर उधर हो गए हैं। लेकिन ये भी सही है कि कॉमनल राइट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश का अगर हम एग्जांपल लें तो कॉमनल राइट्स जो हैं प्री प्लान्ड भी हुए हैं, स्पॉन्टेनियस भी हुए हैं और बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनको कराई हैं। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का भी रहता है और उसमें कॉमनल राइट्स होते हैं। As a police officer, you have to be very, very alert and you have to understand the dynamics of the society, you have to understand the topography of the whole thing and you have to understand the people you are serving. Vulnerability उनकी लोगों की क्या है। ये बड़ी ही विचित्र बात है कि आप जो हैं उन जनसंख्या को डील कर रहे हैं, उन आबादी को डील कर रहे हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट होता है। You're not supposed to be a great reformer. You're not supposed to be a great counselor. You're not supposed to be a great psychologist. But you have the everything of all these. Unless you become a good reader, good reader of the minds of the people. आप अगर मेहनती नहीं हैं, आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, आप उतना परिश्रम नहीं करते हैं, आप फोकस उन चीज़ों में नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एज ए पुलिस ऑफिसर यू विल नॉट सक्सीड सो सक्सेसफुली। सर, मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था कि आपने बताया व्हाट मेक्स फॉर अ गुड पुलिसमैन, व्हाट मेक्स फॉर अ गुड क्रिमिनल इज़ ए क्वेश्चन आई हैव इन माई हेड।
कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली समझ में आती हैं. You would have to be very vigilant, very paranoid, very sharp, very intelligent. You would have to be very well aware. You would need to have lack of empathy. But what other things have you noticed? Have you noticed a criminal by which or from whom you were impressed? But there have been many people with whom I have really been impressed as a criminal. As criminal, they projected a very different kind of sharp mind. Can we get some examples or some experiences, sir? I remember there was, I wouldn't like to name him, but he was a terrorist. He was a terrorist from UP, and he was caught in Assam. Okay. And he was most probably blind. Oh. Or maybe even if he's not blind, then perhaps he had very, weak eyes. And I was DIG in Muradabad at that time, and I was drafted by the Assam police to come and talk to him, come and interrogate. And I found him very, very sharp. He was from Muzaffarnagar, and he got involved in many terrorist activities. In fact, he went to Pakistan. वहाँ उसने ट्रेनिंग की, कुपवाड़ा में उसने काम किया, और फिर बांग्लादेश के रास्ते से वो इंडिया आया था, और उसके पास से भारी मात्रा में RDX बरामद हुआ और अमेरिकन डॉलर्स बरामद हुए. एंड दिस इज़ हाउ द पुलिस पिक्ड हिम अप. And he was blind. He was more or less blind. And why I say this, that a lot of agencies were interrogating him, and ultimately I also interrogated. And at that time I used to smoke. No, though I don't smoke now, but I used to smoke. तो मैं सिगरेट जब पी रहा था तो मैंने देखा कि वो सिगरेट पीता था लेकिन उसको मिल नहीं रहा था. तो मैंने उसको सिगरेट ऑफ़र किया, और जब सिगरेट ऑफ़र किया तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ केमिस्ट्री डेवलप बिटवीन टू ऑफ अस, एंड ही टोल्ड मी लॉट मेनी थिंग्स व्हिच आई नेवर एक्सपेक्टेड. So, but he was sharp. I can't describe his sharpness because that was a very small, very short tenure that I had to interrogate him. So he was a shining example of, but he was a terrorist, Pakistan trained terrorist. Similarly, हमने criminals में भी बहुत देखे हैं, जैसे जिनके sharpness को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार वो crime को अंजाम देते हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके माइंड को रीड करें. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स अ मैन अ गुड क्रिमिनल, इन फैक्ट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. इट कुड बी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट कुड बी बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मेक मनी इन अ वेरी फास्ट मैनर. और न केवल पैसे बनाने की, बट ये एक उसके मन में हमेशा ये रहती है कि आई विल नॉट गेट कॉट. सो वो लूप होल्स जितने भी हमारे जुडिशल प्रोसेस हैं और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको किस प्रकार हम एक्सप्लॉयट करें. आई मे नॉट बी कॉट, इवन इफ आई एम कॉट, एविडेंसेस आर सो वीक दैट आई मे नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, एंड इवन इफ आई एम प्रोसिक्यूटेड द विटनेसेस डोंट कम इन टू हेल्प मी, टू हेल्प द पुलिस एजेंसी. और अंत में जो है जुडिशरी भी हमको बहुत ही हार्श पनिशमेंट न दे. तो इस प्रकार की फीलिंग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए ज़रूरी है ये कि हम पूरे लीगल सिस्टम को किस प्रकार देखते हैं. व्हाट हैपन्स टू अस, हम जाते हैं बाहर, हम विदेशों में जाते हैं, तो कभी बाहर के स्ट्रीट्स को गंदा करने की नहीं सोचते हैं. हमें लगता है कि कानून का डर है, CCTV हमें वॉच कर रहा है, या लोग क्या कहेंगे, और आई मे बी कॉट, आई मे बी प्रोसिक्यूटेड, आई मे बी डिपोर्टेड. द सेम थिंग हैपन, एंड द सेम टेंडेंसी डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया. हम इंडिया में अपने जहाँ चाहते हैं कूड़े फेंक देते हैं, वो कर देते हैं, बट इट डजंट हैपन इन फ्रॉम अस इन अदर कंट्रीज़. तो यही चीज़ होती है क्रिमिनल्स का भी. अगर क्रिमिनल्स के माइंड में ये आ जाए कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी जाएंगे तो हम प्रोसिक्यूट नहीं होंगे, और अगर प्रोसिक्यूट भी हुए तो कन्विक्ट नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ी उनकी ख्वाहिश रहती है कि हम कैसे अच्छा क्रिमिनल बन जाएं, और वो लूप होल्स को इस तरह देखते हैं. अच्छे क्रिमिनल से सर याद आया और पता ही है कि हमारे देश में कभी कभार क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बन जाते हैं और अच्छा सक्सेसफुल करियर भी हो जाता है उनका. आपके साथ ऐसा कुछ इनकाउंटर हुआ है सर किसी का? और देन आई वांट टू आस्क अबाउट
your encounters with politicians, and not those type of encounters, just normal human encounters with politicians, good, bad, ugly, both, all three, with your permission. So, the first thing I guess I'm curious about is, you obviously do not like criminals. You are a man who will clear them out. Have you ever had somebody who is a politician, senior to you, and a criminal? I can give you a very glaring example of Atiq Ahmed. Atiq Ahmed 1989 में पहली बार MLA बना. Of course, he's no more now. Right. At that time, I was SPCT. And he had just contested the election and won the election. He became MLA. और जब वो MLA के पहले, जब एक ऑर्डिनरी मैन के ऊपर था, तो उस पर चार्जेस यही थे कि वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था रेलवेज़ में और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में. नॉट सो ग्लेयरिंग, बट यूज्ड टू डू इट. ही वाज अ पेटी क्रिमिनल एंड देन ही फॉट इलेक्शन, और इलेक्शन में जैसा होता है वो जीत गया, और जीतने के बाद ही बिकेम MLA. मुझे याद है कि वो एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे क्रिमिनल्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस बनते हैं, और किस प्रकार पॉलिटिशियंस जो हैं वो रूलिंग डिस्पेंसेशन को हेल्प करते हैं, चाहे वो इंस्टॉल करने में गवर्नमेंट के या फॉल करने के गवर्नमेंट में. सर, आपने मुझे ये भी बताया था, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने मुझे बताया था अतीक अहमद के बारे में ही कि देयर वाज अ टाइम व्हेन यू ऑलमोस्ट गॉट हिम, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से आप पकड़ नहीं पाए. हाँ, ये बात सही है. 1989 की बात है या 1990 की बात होगी, व्हेन ही हैड ऑलरेडी बिकम अ MLA. और उसने, अतीक अहमद ने, बीइंग अ MLA, ही अब्यूज्ड माय सब इंस्पेक्टर. अच्छा. धूमनगंज थाने की बात है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जो है वो थाने पे मौजूद था. अतीक अहमद, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, उन्होंने फ़ोन किया, अतीक अहमद ने टेलीफोन लैंडलाइन से फ़ोन किया, एंड ही वांटेड टू टॉक टू SHO देयर. And the SHO was away from the police station. He was patrolling somewhere. It was daytime. And then he rang up 2-3 times, and then he became very furious with the sub-inspector who picked up the phone. और उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसने गाली देना शुरू किया, और उसने उस सब-इंस्पेक्टर को भी माँ बहन की गाली दी. उसके बाद उस सब-इंस्पेक्टर ने मुझको फ़ोन किया, मैं अपने रेजिडेंस पे था, और उसने रो कर मुझसे पूरी बात बताई कि मुझे बहुत ही ह्यूमिलिएट किया उसने फ़ोन पे. और मेरी ज़िंदगी का पहला है ये अवसर जिस पे कि मैं एक रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हूँ, बट इस तरह का हुआ. आई लॉस्ट माई टेम्पर एंड आई सेड कि नो, इट हैज़ टू बी दैट लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स. और मैंने तत्काल जो है, मैंने कहा कि एक मुकदमा दर्ज करो उसके ख़िलाफ़, और मुकदमा दर्ज करने के बाद हम उसे अरेस्ट करेंगे, बिकॉज़ ये पब्लिक सर्वेंट्स के कार्य को डिस्टर्ब करने के लिए है, और इसके विरुद्ध जो भी रेलिवेंट सेक्शंस लगेंगे IPC के, उसको लगाइए आप. और मैंने कहा कि मैं उसको अरेस्ट करूँगा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. आई इमीडिएटली कॉल्ड माई DSP, CO जो होता है, CO City को मैंने किया, और CO City के माध्यम से हमारे पास 1.5 सेक्शन PAC थी, आधा उसका मैंने रखा और आधा मैंने CO City को दिया, और हम लोग अरेस्ट करने के लिए गए. मैं उसके गाँव में गया जहाँ पे उसका गाँव था, जहाँ उसका निवास था, और मेरे CO जो हैं वो ऑफिस की तरफ गए. करीब 4:30, 5, 5:15 के लगभग शाम की बात थी, बिकॉज़ ये घटना ही 1:30-2 बजे के लगभग हुई थी. जब हम उसके गांव पे पहुंचे तो वो अतीक अहमद वहाँ नहीं था. तो हम वापस लौट रहे थे ये सोच कर कि दूसरी जगह जाएंगे, तो रास्ते में ही आई सॉ हिम कमिंग. अच्छा. मैंने उसकी गाड़ी को रुकवाया और मैंने कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट, यू हैव टू बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन एंड यू हैव डन सच एंड सच थिंग. He was taken aback. He didn't expect कि police officer will do like this, because he had just become a MLA and he wanted to show his power, he wanted to show his strength, and he was definitely a not big mafia, but he was a criminal. Got into the politics and he had his own followings. उसी के गांव के बाहर की बात है ये, तो वहाँ पे भी 200-400 लोग इकट्ठा होने लगे धीरे धीरे. तो उसने कहा कि SP साहब, अगर आप हमें अरेस्ट करेंगे तो सारे लोगों पे गोलियां चलेंगी. और वो, तो हमने कहा कि गोलियां चलेंगी तो चलेंगी, तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा मैं नहीं. और ये कह के हम लोगों का द्वंद्व चल रहा था. इतने में मैंने CO को देखा कि वो जहाँ गए थे वहाँ उनको नहीं वो मिला, तो ही वॉज ऑल्सो कमिंग बैक विद द फोर्स. सो आई गॉट स्लाइटली मोर इम्बोल्डेंड कि हमारे पास तो अब
ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं थी, 10-15 लोग से ज़्यादा नहीं थे, और उनके पास 200-250-300 की भीड़ थी वहाँ पे। लेकिन आई स्टक टू माई गन्स, आई सेड कि नथिंग डूइंग, आई एम नॉट गोइंग टू बज, एंड यू कैन बी डीम्ड टू बी अरेस्टेड इफ आई से कि यू आर अंडर अरेस्ट. Doesn't matter कि whether you're at the police station or anywhere else, but you are under arrest and you will have to be taken to the task. और मैं यहाँ तब नहीं हटूँगा जब तक कि तुम चलोगे नहीं. आप ये अभी चल ही रही थी कि इतने में वहाँ के मेयर और कुछ और लोग आ गए, पॉलिटिशियंस, और उन लोगों ने हमसे आर्गूमेंट करना शुरू कर दिया कि आप कैसे एक सिटिंग एमएलए को गिरफ्तार कर सकते हैं, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्पीकर. मैंने कहा कि स्पीकर के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ऑल दैट आई नीड इज़ टू इन्फॉर्म द स्पीकर विद इन 24 आवर्स, दिस इज़ व्हाट द रूल सेज. एनीवे, ये बहस चल रही थी. इतने में मुझ वायरलेस के द्वारा उनको मैसेज मिला और मुझे भी ये कन्वे किया गया कि उनको छोड़ दिए, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाए. लखनऊ से वो मैसेज आया. तो मेरी 4-4.5 साल की नौकरी थी और इस द्वंद्व में मैं रह गया. और बीइंग स्लाइटली इमैच्योर पुलिस ऑफिसर, मुझे लगा कि देखिए एक डिसाइसिव एक्शन जो है वो बैटलफील्ड में नहीं डिसाइड हो रहा है, बल्कि वो सेक्रेटेरिएट में डिसाइड हो रहा है. और पावर डायनामिक्स यही है कि पहली बार मुझे टेस्ट हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस प्रकार का होता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आप एक क्रिमिनल को किस प्रकार, अगर आज मैं उस समय की स्थिति को रिकॉल करता हूँ, तो अगर वो हो गया होता तो संभवतः हमें से माफिया, बहुत बड़े माफिया बनने से रोक सकते थे, और उसको कन्विक्शन हो सकता था या कुछ भी हो सकता था. लेकिन नियति को दूसरा ही देश था कि भाई इस तरह की बातें हुई. तो ये एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है जिसमें कि एक क्रिमिनल जो है, ही टर्न इनटू अ पॉलिटिशियन, एंड अल्टीमेटली यू सॉ व्हाट हिज फेट वाज. अल्टीमेटली ही वाज किल्ड बाय इन द होल ड्रामा पब्लिकली. राइट सर, बट ये एक हुआ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एग्जांपल. एक और सर, एक इंसिडेंट जो आपका मायावती के साथ हुआ है, वो क्या हुआ सर? व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड? एंड आई नो यू हैव रिटन अबाउट इट, आई नो यू हैव स्पोकन अबाउट इट, बट व्हाट हैपेंड इन योर वर्ड्स? आई विल गिव यू वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड. एक्चुअली मैं बुलंदशहर में एसएसपी था, और जैसा मैंने पहले बताया, एक चांस इनकाउंटर में महेंद्र फौजी मारा गया. महेंद्र फौजी अनदर वाज अ गैंगस्टर हु यूज्ड टू ऑपरेट इन वेस्टर्न यूपी. वो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, इन सब जगहों पे उस वांटेड क्रिमिनल था. ही वॉज जस्ट अरेस्टेड वंस, ही वॉज नेवर अरेस्टेड फॉर लास्ट 10 years. दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 1994. और उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था. महेंद्र फौजी जब मारा गया तो उस समय की सरकार जो थी वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी. और उस समय हस्तिनापुर मेरठ का एक कंस्टिट्यूएंसी था जिसमें बाई इलेक्शन होना था, और वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से प्रीडोमिनेंट था. वो हस्तिनापुर का जो कंस्टिट्यूएंसी था, महेंद्र फौजी उस कम्युनिटी को बिलोंग करता था. और बहुजन समाज पार्टी और ख़ासकर वहाँ के उनके नेता जो थे, वो इस बात का आरोप हम पर लगाए कि महेंद्र फौजी के चांस इनकाउंटर के कारण जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो नाराज़ हो गई, और उसके कारण बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था वो बाई इलेक्शन में हार गया. अच्छा. और उन्होंने इसको एक इशू बनाया, एक पॉलिटिकल इशू बनाया कि एसएसपी को वहाँ से न केवल हटाया जाए बल्कि उसको सस्पेंड किया जाए. उस समय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने बहुत ही फर्म स्टैंड लिया. उन्होंने कहा कि मैं इन्हें नहीं हटाऊंगा क्योंकि वो एक चांस इनकाउंटर में मारा गया है, और जो रूल ऑफ लॉ कहता है उसके हिसाब से. एंड महेंद्र फौजी वॉज अ ड्रेडेड क्रिमिनल, ही वॉज कैरिंग अ रिवॉर्ड ऑफ 2 lakhs. देयर वॉज नो वे दैट वी हैव टू सिंपथाइज. ही टुक अ वेरी फर्म स्टैंड एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट. उसके बाद उन्होंने मुझे एसएसपी लखनऊ बना दिया, और एसएसपी लखनऊ बनाने के बाद मायावती जी ने और काशीराम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने कहा कि कहाँ हमने ये डिमांड किया था कि इन्हें सस्पेंड किया जाए, और मुख्यमंत्री ने तो इन्हें और भी प्रोत्साहित करके एक इनाम के तौर पे राजधानी का एसएसपी बना दिया. और संभवतः उन्होंने, मुलायम सिंह जी ने ये सोच के मुझे बनाया क्योंकि राजधानी में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे, सीरियल क्राइम्स हो रहा था, और बहुत क्राइम बढ़ गया था. और आई यूज्ड टू बी ट्रीटेड एज अ वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर.
पुलिसिंग मेरी अच्छी थी। लखीमपुर खीरी का मेरा रिकॉर्ड था जहाँ मैंने टेररिज्म को कंटेन किया था। बुलंदशहर में भी मेरा रिकॉर्ड अच्छा था। महेंद्र फौजी मारा गया था, बहुत सारे ऐसे थे। तो उस हिसाब से मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे कहा कि आपको एसएसपी लखनऊ बनाते हैं। लेकिन जब ये इस प्रकार की बात हुई तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि यदि यू हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन मी देन गेट मी ट्रांसफर्ड आउट। आई कैन नॉट स्टे हियर व्हेन द कोलिशन पार्टनर्स आर बेइंग फॉर माई हेड। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब यू विल स्टे बैक एज एसएसपी लखनऊ। कुछ दिनों के बाद जब प्रेशर बहुत हुआ बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी के ऊपर, तो एक रात मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया। मुझे अभी भी याद है 11 बजे रात में उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने ये शब्द कहे कि मुझे तो ये कहा जा रहा है कि उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन मैं आपको एसएसपी साहब सस्पेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और यदि मैं ट्रांसफ़र आपको नहीं करूँगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ये एक साझा सरकार है। सो मुझे बहुत ही दुख के साथ मुझे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मेरी कोई मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और जहाँ भी सरकार चाहेगी मुझे पोस्ट करेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने अच्छा काम किया है, लखनऊ में भी काफ़ी क्राइम कंट्रोल में है, लेकिन जहाँ सरकार चाहती है वहाँ मुझे भेज सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन सब्सिक्वेंटली ही पोस्टेड मी एज एसएसपी कुंभ मेला इन 1994। तो दैट वाज द होल बैकग्राउंड। ये पूरी पृष्ठभूमि इस प्रकार की थी जिसमें एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो एक टूल की तरह, एक पॉलिटिकल ट्रांसफर्स, एक कोअर्शन की तरह यूज़ किया गया। जैसा मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वो एक ग्रैंड चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंटरफेरेंस तो हम छोटे छोटे रोज़ देखते हैं। आप किसी नेता का ये बात आपको बताई जाती है कि इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा डिरेल कर दीजिए, इसमें इन एक्यूज को मत गिरफ्तार कीजिए, इन्वेस्टिगेशंस को थोड़ा अलग कर दीजिए। इस तरह के छोटे छोटे इंटरफेरेंस तो हम रोज़ देखते हैं और उसमें हम फाइट करते हैं। लेकिन बड़े बड़े इंटरफेरेंस भी होते हैं जिसमें ट्रांसफर्स जो है एक वेपन बन जाता है किसी व्यक्ति को हटाने या पोस्ट करने का। तो ये एक उदाहरण है जिसमें कि मुझे हटाया गया वहाँ से सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी को ये मंजूर नहीं था कि मैं वहाँ रहूँ। सर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एक दूसरा साइड भी है, एक फ्लिप साइड, एक पॉजिटिव साइड, जब आपको पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिलता है, और वो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, खासकर योगी आदित्यनाथ के टाइम पे। वो एक्सपीरियंस कैसा था सर? देखिए, उसको हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिटिशियंस को स्टेक होल्डर की तरह देखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर इन द गवर्नेंस। चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों या मिनिस्टर्स हों या एमएलएज हों, उन सबों का एक स्टेक है एज ए स्टेक होल्डर इन द गवर्नेंस। अगर उनकी बात अगर आप डेमोक्रेटिकली वो रखते हैं और उसको हमें चाहिए कि हम उन्हें देखें कि किस प्रकार की बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि बुलंदशहर में जब मैं डीजीपी था 2019 में, तो 18 में बुलंदशहर में एक घटना हुई जिसमें सयाना थाना क्षेत्र में एक एसएचओ की हत्या कर दी गई। उसमें राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस था और बहुत सारे लोग थे। उन सबों ने भीड़ इकट्ठा वहाँ की एंड माय सर्विंग एसएचओ वाज किल्ड। ये 2018 की बात है। और हम लोगों ने बहुत ही स्विफ्ट तरीके से एसआईटी गठित किया, एसएसपी को बदला, एक नया एसएसपी को वहाँ लाया, प्रभाकर चौधरी जो आउटस्टैंडिंग ऑफिसर था उसको हमने एसएसपी बुलंदशहर बनाया और उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, मेटिकुलस तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन किया। और मुझे याद है कि उसमें हिंदू संगठन के भी कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन हम लोगों ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं मानी। हमारे ऊपर प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद हम लोगों ने बहुत ही फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाया और प्रभाकर चौधरी ने किया और अंत में हम लोगों ने 3 महीने में उस केस को चार्जशीट किया। और अभी 15 दिन पहले उसका जजमेंट आया। उसमें हम लोगों ने 44 आदमियों को चार्जशीट किया। उसमें से 5 आदमियों की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई। एक नाबालिग बच्चा था जिसको जुवेनाइल कोर्ट ट्रीट कर रही है और बाकी 38 जो हमारे एक्यूज थे उन सभी को सज़ा मिली।
उसमें 5 को आजीवन कारावास हुआ और 33 को 7-7 साल की सज़ा हुई। तो आप ये शाइनिंग एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जबकि रूलिंग He डिस्पेंसेशन, was lynched by the mob. he was lynched by the mob. He was lynched by the mob. That's My why serving, all these people. yeah, and he was my serving inspector. He was SHO of Sayana Thana, and he was lynched. He was killed, brutally killed. और हम लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, और अंत में उनको सज़ा हुई। ये हमारे फेयर इन्वेस्टिगेशंस को वैलिडेट किया। अभी हाल की बात है, 15 दिन पहले की बात है। तो इन्वेस्टिगेशंस जो है वो फेयर तरीके से हो, ये हमने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के थ्रू नहीं, अपने प्रोफेशनलिज्म के थ्रू किया। तो जहाँ तक समझता हूँ मैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे रूप में हो रहा है, लेकिन ग्रैंड इसके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, रूल ऑफ लॉ को देखना है। और ऑफिसर्स ऐसे अभी भी हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो यूपी पुलिस हो या अन्य जगहों की पुलिस हो, इंडियन पुलिस को ही लें तो उसमें बहुत सारे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं जो अपने प्रोफेशनल एक्यूमेन के द्वारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को, इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट इट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बेकार तब हो जाता है या दिक्कत करती है जब हम पॉलिटिकल लॉयल्टी को रीडिफ़ाइन करने लगते हैं। रीडिफ़ाइन करना वो बहुत गलत होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है शुड नॉट बी रीडिफाइंड एकदम अनक्वेश्चनिंग वे में, जो पॉलिटिकल लॉयल्टी बना देता है। ओह, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आई हैव टू बी एम्बेडेड टू दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इफ़ दैट हैपन्स देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ डेडली, देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ बैड एंड इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन अगर आपको कहता है कि यू मे लाइक टू सी दिस, this is not a good way to proceed, then it is on the part of the police officers to say it, to judge it judiciously. अगर आप उसको मेरिट पे नहीं देखेंगे, उसको मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं मानता हूँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तभी है जब हम उसकी आइडियोलॉजी से सहमत होने लगते हैं और वो हम पर प्रेशर डालता है, चाहे वो कोर्शन के टूल के रूप में या इन्वेस्टिगेशंस को दबाने के लिए या एक्यूज को न पकड़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, बहुत सारे सवाल अभी मेरे रह गए। वी डिड नॉट गो इनटू एआई, एंड आई आल्सो नो दैट यू हैव इंस्टीट्यूटेड ट्राइनेत्रा, व्हिच इज facial recognition of criminals, AI. We didn't go into cyber crime and a number of other things. I think we're going to need a part 2 and maybe even a part 3. Certainly, we'll go for the part 2 sometime later. But sir, thank you for everything that you shared. Your insights, और आपने जिस तरीके से हमको बताया, the way you explained it and everything that you gave us in tidbits, you sprinkled it. It's very precious. I will look forward to reading both books and perhaps do a video review of them also. Thank you so much, Ravi. It has been a wonderful conversation with you. I got to learn so many things from you also, and I got to know how the people perceive the police functioning. You talked about, you asked me about encounters, you asked me about political interference. These are the burning questions in the minds of the people. And we need to tell the people that how do we work. It's not merely policing. Yes. It's educating the people about the police functioning. And that is where the leadership counts. Sir, in every episode, there is a final question I ask the guest. And the name of the podcast and the show is called The Syllabus of Life. The idea behind it is that what is it which should be in the syllabus of life, which is not taught in school or college, because we all end up learning something which is very unique and personal to each of us. But then we may or may not pass it on to the wider audience, to the world. What, according to you, should be included in the syllabus of life that you have learned out of school or college, that is your personal knowledge that you would like to share with the world? You know, life is a very, very delicate journey, and life is what you make of it. I would say that when you are navigating your life, you should have clarity of thought. You should have, you try to inspire others. That's very important. And you have to be focused. Life cannot be reborn and relived. I mean, whatever life gives you, it has to be lived at that particular moment. So, इस पे बहुत ज़्यादा सोचना इस बात का नहीं है. And I think you are the best project for yourself. Every life is the best project. अगर हम प्रोजेक्ट की तलाश में रहें तो हम अपने लाइफ को कैसे एक प्रोजेक्ट मानें जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें.
through good thought, good food, good quality living, good conversations with people, good contributions towards society, and a good contribution towards nation building, and last, good humanitarian concern. Because ultimately it's the human being which matters. And that is why my job in National Disaster Response Force has been spectacularly beautiful. Because for the first time I realized that policing is one thing, but having a compassionate policing, having a humanitarian policing is another thing, where the whole humanity congregates at one point. Right. And when you don't have the command and control system, but it's the unity of efforts, all of them aggregate together and try to help people, try to help humanity. That is something which is very important, and life has to be lived like that. Thank you, sir. That is inspiring and very well put. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Ravi.